वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। नाउ बात करते हैं टुडे आवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो लेट्स सी हियर every experiment measurement has some amount of uncertainty associated, you can see here, with it. However, one would always like the result to be precise and accurate. Precise means lagbhag, accurate means accurate 100%. Precision and accuracy are often referred to while we talk about the measurement. Now you can see here, precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity. However, you can see here, however, accuracy is the agreement of particular value to the true value of the result. For example, you can see here, if the true value for a result is 2.00 gram and a student A taken the two measurement and reported the result as 1.95 gram and second 1.93 gram. These are the value are the precise as they are the closest to each other. But you can see here, other are not accurate. Another student reports the experiment and obtain 1.94 gram and 2.5 gram as the result of two measurement. These observations are neither precise nor be accurate. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर, when a third student repeats these measurement and report 2.01 gram and 199 gram as the result. These values are both precise and accurate. You can see here data for the illustration, precision and accuracy. Student A one measurement 1.95, सेकेंड के लिए 1.93, द एवरेज ग्राम आ गया 1.940. सेकेंड स्टूडेंट के लिए यू कैन ऑल्सो सी हियर सेम एंड थर्ड स्टूडेंट. तो हम कह सकते हैं प्रीसाइज मीन्स लगभग जो वैल्यूज आती हैं और एक्यूरेट का मतलब 100% एक्यूरेट जो फिक्स हो. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय mentioning the number of the significant figures. Significant figures are the meaningful digit. Very important topic है. Significant figures are the meaningful digits which are known with certainty. You can see here, the uncertainty is indicated by the writing the certain digit and the last uncertain digit. Thus, if we write a result as a 11.2 ml, you can see here 11.2 ml, we says that 11 is certain and 2 is uncertain, and the uncertainty would be +1 or -1 in the last digit unless otherwise stated, and uncertainty of +-1. You can see here in the last digit it always understood. Next देख लेते हैं, significant figures means that all meaningful digits are significant. There are the certain rules to determining the number of the significant figure. Let's see here, all non-zero digits are the significant. For example, इसके अंदर 2.85 में 3 significant figures हैं और इसमें बात कर लेते हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है 0.25. बिफोर पॉइंट से पहले जीरो है उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको काउंट नहीं करते. नेक्स्ट देख लेते हैं, जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर द नॉन सिग्निफिकेंट. सच जीरो इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट. यस, यू कैन सी हियर, यहाँ पर देख लेंगे इसमें 0.03 ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है, माने पॉइंट से पहले यहाँ पर देखिए 3 से पहले भी 0 है और इससे पहले भी 0, पॉइंट से पहले 0 है तो इसको हम ओनली 1 काउंट करेंगे. नाउ अगेन देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल. यहाँ पर नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर
0.0052, only 52 we will be count. नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पर 2. नेक्स्ट देख लेते हैं जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर. हम क्या कह सकते हैं, थस कह सकते हैं 2.005 आर द 4 सिग्निफिकेंट फिगर. कितने सिग्निफिकेंट है, 4. नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर, यू कैन सी हियर 4 points. 0 at the end or right of the number are significant providing they are on the right side of the decimal point. For example, 0.200 gram has the 3 significant figure. तो इस तरह की जो डिजिट्स होती हैं इसमें हम जो है 3 काउंट करेंगे, क्योंकि 0 को भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे. तो 1, 2 और 3. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसके अंदर, 3. But you can see here, but if otherwise the terminal 0 are not significant if there is no decimal point in the for the example. तो यहाँ पर क्या करते हैं, only one significant figure है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है 100 के अंदर, तो we take only 1. तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 1 फिगर. बट यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, डेसिमल है, तो इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट. इसी तरह से यहाँ पर हो जाएंगे आपके, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि 100.0 है तो इसमें हो जाएंगे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर. सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन द साइंटिफिक नोटेशन. वी कैन एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ द 100 एज ए 10 की पावर 2. यस, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया कि आपको जब डिजिट्स हमारी बड़ी हों, लेंथी हों, तो हम उनको क्या करते हैं 10 की पावर्स में काउंट कर लेते हैं, 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर देख लेंगे द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 1.00 इंटू 10 टू की पावर 2 फॉर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर. यू कैन सी हियर 1.00 मीन्स ऑल आर काउंटेबल. नेक्स्ट देख लेते हैं 4th पॉइंट में, counting number of object, for example 2 balls or 20 eggs have the indefinite significant figure, as these are exact numbers and can be represented by the writing infinite number of the zeros after the placing of the decimal. It means 2 equals हो सकता है 2.00 और 20 equals हो सकता है 20.00. तो इसके अंदर हो जाएगा इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट देख लेते हैं इन द एग्जाम्पल, इन द नंबर ऑफ, यू कैन सी हियर, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, सिंस 2.5 हैव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर बट इट इज 3.1. while the limiting the result to the required number of the significant figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind that first of all देख लेते हैं, बहुत important points है, if the rightmost digit to be removed is more than 5 the preceding number is increased by 1 number. बात कर लेते हैं, जैसे suppose that यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड ये भी, तो 1.386 इफ वी हैव द रिमूव 6 को रिमूव करना, वी हैव टू राउंड इट टू 1.39. यू कैन सी हियर. नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द राइट मोस्ट, you can see here, if rightmost digit to be removed is less than 5 then preceding number is not changed. For example 4.334, if 4 is to be removed then the resulting round up to 4.33. क्योंकि ये क्या है, हमारा 5 से लेस है,
तो हम इसको राउंड ऑफ करते हुए क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ रह जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर, यू कैन सी हियर लास्ट पॉइंट, if the rightmost digits to be removed is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is in a odd number. For example देख लेते हैं, 6.35 is to be rounded by the removing 5, we have to increase the 3 to 4 given 6.4 as the result. The reason is that इससे पहले हमारा even number नहीं है, 3 is a odd number, so that's why we are increase 1 number. Next देख लेते हैं, however if 6.25 is, you can see here again 6.25 is to be rounded off, it is rounded off the 6.2. The reason is that 5 और 5 से above है और इससे पहला नंबर हमारा कैसा है, डिजिट हमारी कैसी है, इवन है, तो ये हमारा एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो इसके साथ साथ देख लेंगे यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं पॉइंट, रिजल्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे कम वैल्यू हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की आ रही, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 3, इसको ऐड करने के बाद में 3 में ही आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, सेम रूल हम यहीं पर फॉलो करेंगे। तो अगर हमारा मिनिमम कितना है, यहाँ पर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें आंसर भी अपना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना होगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में होता क्या है कि यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिमिट्स को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट्स को, देखते सकते हैं आप। ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू convert units for one system to the other. This method used for the accomplish, this is called the factor level method or unit factor method for the dimensional analysis. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाउ कैन वी इजिली कन्वर्ट, देखते हैं तो यहाँ पर 2 डेज को हाउ कैन वी कन्वर्ट 2 डेज, 2 डेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2 डेज को हम कर रहे हैं 24 आवर 1 डे अपॉन इंटू 60 मिनट अपॉन 1 आवर 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। तो इस तरह से हम करके एक दिन के अंदर कितना हमें 2 डेज के अंदर हमारे कितनी सेकेंड्स आ गए, 172800, 1,72,800 सेकेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ये क्या था, हमारा केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने प्रपोज किया था। तो इन्होंने बताया था गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्ट द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट बाय वेट। नेक्स्ट इसके साथ साथ में ही देख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन्स टू 18, यू कैन सी हियर 1803। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ you can see here, if 2 elements can combine to form a more than one compound, the masses of one element that the combine with fixed mass of the other element are in the ratio of the whole numbers। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर 2 मासेस आपस में, 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और इसी तरह से वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन होते हैं, तो दोनों एलिमेंट्स जो हमारे थर्ड एलिमेंट से अलग अलग डिफरेंट कंबाइन हुए हैं, तो उनका रेशो भी एक फिक्स रेशो होगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर वी आर एडिंग 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन ऑफ 16 ग्राम एंड 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन 32 ग्राम्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका क्या है, एक फिक्स रेशो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 18 ग्राम एंड 34 ग्राम्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर गैलुसॉक का गैसियस लॉ ऑफ गैलुसॉक्स। द लॉ वाज गिवन बाय द गैलुसिस इन 1808। तो इन्होंने बताया था व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो
in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गैस का, तो इसे याद करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवोगैड्रो लॉज। तो यू कैन सी हियर एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, इस साइंटिस्ट का नेम है एवोगैड्रो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर Avogadro proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure should be contain the equal number of the molecules Avogadro made to the distance the between the atoms and the molecules। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर हमारी कंडीशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फिक्स वॉल्यूम में रखें तो वो इक्वल होंगे। तो यू कैन सी हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड बातें हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।